let's start with the new topic, that is oxidation number or the oxidation state. So initially what happened that you have seen the redox change or the redox reaction taking place, that being arises because of the transfer of electrons takes place from one atom to another, or one species to other species. In case of ionic compound it is easy, right? Because you know that in ionic compounds that it is very easy, one can accept the electron, other can give the electron. But in case of covalent compounds the situation is a bit complicated comparison to, if you compare it with the ionic compounds. The situation arises in the case of covalent compound, it's not very easy of transferring of electrons. So we always follow a term, that is the oxidation number or the oxidation state. I'll give you a detail of it in later on form. Just now I just want to discuss with you the definition portion, that oxidation number or the oxidation state of an atom in a molecule is defined as a formal charge that an atom appears to have when the electrons are counted according to the following rules. So this is the definition, and these are the two rules that is being given, that the electron shared between two like atoms divided equally between the two sharing atoms. Another is electron shared between two unlike atoms and counted with the more electronegative atom. Now we'll discuss it with the examples, then only it will be clear with us. Now let's come to an example H2. You know that this must be arises, this is a covalent bond, क्योंकि electrovalent में it is easy, but in covalent it's been difficult. So this is a covalent case, and you know this was the bond formation, and these were the electrons that was the shared. ठीक है, if you were dividing according to the first rule we are following, जैसे जहाँ पे when both the atoms are same like, ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. इसके पास भी वन इलेक्ट्रॉन है, दिस वन इज ऑल्सो हैविंग द वन इलेक्ट्रॉन. सो इन दिस द फॉर्मल चार्ज, आर यू गेटिंग एनी चार्ज? कोई पॉजिटिव नेगेटिव है, नहीं आ रहा है. तो फॉर्मल चार्ज जो है वो नहीं आता है ना, इसमें कोई नहीं है चार्ज आ रहा है. बट आयनिक बॉन्ड्स में या आयनिक कंपाउंड्स में ये चीज़ अवेलेबल होती है. तो फॉर्मल चार्ज क्या है, दोनों ही अगर आप एच एटम्स को देखिए दे आर गेटिंग ज़ीरो. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी दोनों के केस में क्या रहेगी, ज़ीरो ज़ीरो रहेगी. सो ओवर या जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया या कोई भी मॉलिक्यूल्स की कंडीशन हो जाएगी, दे आर हैविंग जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर इन बोथ द केसेस दैट इज़ ज़ीरो. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स का कंडीशन था. ये H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के केस में यू आर गेटिंग द ज़ीरो ऑक्सीडेशन. अगर Cl2 भी आ जाए तो ज़ीरो आ जाएगा, F2 कुछ भी मॉलिक्यूल्स को लेके चलोगे तो यू गेट ज़ीरो. नाउ लेट्स कंसिडर विद एन एग्जांपल, जो हमारा सेकंड पॉइंट है. जैसे आप सपोज करो HCl हमने यूज़ करा, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, एंड इन दिस यू नो दैट देर आर टू डिफरेंट एटम्स. ठीक है, अब दोनों एटम्स अलग अलग हैं, लेकिन इसमें एक जो है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, जो हमारा पॉइंट कह रहा था कि द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन द टू अनलाइक एटम्स. दो डिफरेंट एटम्स हैं एंड बोथ आर हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. दिस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यू नो ना, दे आर हैलोजन, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. So this was the point when you get you can understand it. Now over here if you see this point, that this the shared pair of electrons are being there sharing between these twos ना, चाहे वो H हो या Cl हो, ये लेस है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो व्हाट इज़ हैविंग, व्हाट इज़ द केस, इसमें क्या हो रहा है, Cl है भाई नेगेटिवली है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपको मालूम है ना, ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैटेगरी में आता है. तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इसमें जनरेट होता है. तो इफ़ यू सी दिस थिंग दैट दिस हाइड्रोजन एटम विल लूज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो तो ये तो अगर हम रिमेंबर, इफ़ यू रिमेंबर योर क्लास 10th पॉइंट, दिस वाज द केस है ना. तो ये पास होके इनमें शेयरिंग हो रहा है. तो बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा, तो हाइड्रोजन एटम विल लूज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो ओवर ये H विल एक्वायर अ पॉजिटिव प्लस चार्ज एंड Cl वाइल टेकिंग दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन टू इट, तो ये -1 इस पर चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो इस कंडीशन में जो HCl मॉलिक्यूल है, तो इसमें +1 जो है वो H का है ऑक्सीडेशन नंबर, और Cl के केस में क्या है, -1. देखो ऑक्सीडेशन नंबर में इट्स इंपॉर्टेंट, यू हैव टू, इफ़ ज़ीरो है तो कोई इशू नहीं है, बट इफ़ इट इज़ इफ़ सम चार्जेस आर देयर देन यू विल नॉट से इट इज़ 1 1.
तो ऑक्सीडेशन जो नंबर है इसमें क्या है आपका पॉजिटिव है, +1 है, क्योंकि इसने लूज़ करा है और इसने लिया है, तो इट्स दैट्स वाई इट्स रिक्वायरिंग अ -1 चार्ज. तो दिस वे यू कैन हैव अ पॉइंट ऑफ इट. नाउ लेट्स फोकस अपॉन द चार्जेस ऑन दीज टू. अगर आप इसमें H और Cl का देखते हैं तो यहाँ पे Cl ने उसके अपने जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो थे ही थे, है ना, और इसने इसके भी ले लिए हैं, तो इसके इसने दिया है तो फॉर्मल चार्ज इसमें क्या हो जाएगा +1. इसने लिया है तो -1. ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी +1 और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है माइनस. देखो फॉर्मल चार्ज ऑक्सीडेशन जो नंबर है दोनों का सेम ही निकल रहा है, ज़्यादातर सेम निकलेगा. तो आई थिंक दीज थिंग्स यू आर क्लियर विथ इट एंड हाउ यू कैन डू. नाउ लेट्स फोकस ऑन बिकॉज देर आर सर्टन रूल्स. ये एक रूल आपने ये वाला रूल पढ़ा है अभी ये रूल यहाँ पे याद रखिएगा. कोई भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, है ना, कुछ भी एलिमेंट हो जाए तो उन मतलब जैसे आपने H2 लिया रखा है, आप कोई भी मॉलिक्यूल उठा के ले लीजिएगा तो उसमें सबका आपका ज़ीरो ही रहेगा. अब यहाँ कुछ है ना, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि अनकम्बाइंड स्टेट में होते हैं या दे आर इन द दिस थिंग एलिमेंट्री फॉर्म में होते हैं, उनको भी आपको लेके चलना है. तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि एलिमेंट्री हैं आपके या अनकम्बाइंड स्टेट में हैं, बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. सो इन दैट कंडीशन जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उन एलिमेंट्स का वो ज़ीरो चलता है. अब कैसे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू अभी आपने H2 का देखा तो आपने ज़ीरो लिखा है ना, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका H का था वो कितना आया, ज़ीरो आया है ना. वही चीज़ तो आप लेके चल रहे हैं. अब आपने फॉस्फोरस का देखा, ये 4 होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस कितना आएगा, ज़ीरो है. अब आप अपना सल्फ़र देखेंगे, सल्फ़र 8 के फॉर्म में होता है तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा. दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. हीलियम है, इनर्ट गैसेस हैं तो वो ज़ीरो देंगी आपकी, ठीक है. N2 है, अगर N2 दें आप लोग, इसमें N का देखेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो ज़ीरो. नियॉन, ये सब नोबल गैसेस अगेन आई एम टेलिंग यू दे आर ज़ीरो. तो दिस इज ऑल्सो वन केस विच यू हैव टू रिमेंबर. नाउ द सेकेंड पॉइंट arises. Now there is one more point. Oxidation number of an element in a monoatomic ion is equal to the charge present on the ion. Now what does this particular thing mean? For example, suppose करो आपको oxidation number K का दिया रखा है, ठीक है, of K in K प्लस. तो इसमें क्या होगा, जो भी इस पे चार्ज है, जैसे इस पे प्लस चढ़ा हुआ 1, तो दिस विल बी +1 इसका चार्ज है, ठीक है. अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe देख लें इन Fe+2, सो इसमें क्या होगा +2. इसमें अगर Fe+3 होता तो +3 हो जाता. अगर आप इसमें खाली Cl का देख के चलेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा. तो प्लीज़ दीज थिंग्स यू हैव टू एनालाइज के इंडिविजुअली क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है. अगर चार्जेस अगर उसमें प्रेजेंट है Cl माइनस है तो आपको देख के पता चल जाएगा कि -1 आ रहा है. S -2 है तो क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा. अगर आपका Sn+4 है, अगर टीचर ने दिया रखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा +4 आ जाएगा. Fe+3 इज़ देयर सो यू विल राइट डाउन +3. तो दीज आर द जो चार्जेस की वैल्यू वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, अगर वो मोनो एटॉमिक आयन के फॉर्म में है. मोनो एटॉमिक का समझते हैं ना, इंडिविजुअल. अगर ये सिंगल SN रहे, Fe खाली ऐसी रहे, यहाँ पे Cl ही हो, S हो ये है, तो आप इस कंडीशन पे आपको ध्यान देना है कि क्या है जो इन पे इनके जो आयन्स पे चार्ज होगा वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा. दिस कंडीशन इज़ ऑल्सो देयर. नाउ द वन मोर पार्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन का केस ये होता है कि किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन होगा उसकी वैल्यू -1, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी -1 विल बी देयर, ठीक है. वी हैव वन मोर थिंग, जैसे एल्किली मेटल्स होते हैं. एल्किली मेटल्स में मालूम है फर्स्ट ग्रुप में आते हैं. कुछ भी कोई भी एल्किली मेटल्स होंगे उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा +1 होगा, चाहे वो किसी भी कंपाउंड में हो, किसी भी कंपाउंड में. ऐसी इफ़ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को आप लेके चलते हैं तो क्या है ये +2 देगा, है ना. सेकंड ग्रुप के मेंबर्स है ना, तो कोई भी फॉर्म में किसी भी कंपाउंड के फॉर्म में वो होंगे, इट देयर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +2. नाउ नेक्स्ट पॉइंट अराइजेज अबाउट द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का जो पॉइंट होता है, हाइड्रोजन किसी भी उसमें हो, किसी भी कंपाउंड्स में हो, वो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज़ हाउ मच, इट इज़ +1. बट देर आर सर्टन मोर थिंग्स विच यू हैव टू एनालाइज. हाइड्राइड्स में ये फ़र्क होते हैं, है ना. एक्सेप्ट हाइड्राइड मतलब किसी और HCl है,
HBr है, कुछ भी दिया रखा है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो गया भाई, H2 है तो वहाँ 0 लगेगा ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अगर वो किसी कंपाउंड में बना रहे हैं तो उस HBr HCl कोई भी एसिड वगैरह कंडीशन में उन सब में क्या होगा, इसका +1 रहेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अराइजेस अबाउट योर, इसमें एक पॉइंट इज दैट हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड्स भी बनाते हैं। तो हाइड्राइड्स में जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि आपने अभी तक ये सब तो पढ़ा है, HCl है, HNO3 एसिड्स पढ़े हैं हाइड्रोजन के, ठीक है ना, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी कि हाइड्राइड्स होते हैं, जैसे कोई भी मेटल है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करा है, सपोज करो K है, H इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, आपने KH लिखा, ठीक है। अब कैल्शियम को ले लो, H है, यहाँ 2 है या 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये करिएगा मत आप, इट इज़ जस्ट फॉर योर सेक। तो ये चीज़ें क्या है, हाइड्राइड्स में इनकी जो आप देखते हैं आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो जाती हैं वो फ़र्क होने लगती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कई कई केस में देखिए हाइड्राइड्स को समझना है तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, +1 इंडिकेट कर रहा है आपका, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें हैं कि आपकी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे परऑक्साइड्स हैं या आपको थोड़ा सा और भी कंपाउंड जैसे सुपर ऑक्साइड्स हैं या सब ऑक्साइड्स हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान देके चलना है। पर ऑक्साइड का एग्जाम्पल बहुत आएगा आपके पास, ठीक है। पर ऑक्साइड्स को लेके आपको बहुत बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आएंगे कि वैसे तो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन की कंडीशन होती है वो आपकी -2 होती है, ठीक है। ये ध्यान देके चलना कि -2 आपका चलेगा, ठीक। अब पर ऑक्साइड में देख लेना, देखो अगर ऑक्सीजन का कोई भी है, चाहे ऑक्साइड्स हो कुछ भी है, तो -2 है, ऑक्सीजन अगर है ऑक्साइड के फॉर्म में वगैरह। अब पर ऑक्साइड क्या होगा, देखो आपने ये चीज़ तो पढ़ी है Na2O, ठीक है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड पर है। पर ऑक्साइड क्या हो जाता है, जब आप ऐसे लिखते हो Na2O2, ये क्या है आपका पर ऑक्साइड है, ठीक है। ये चीज़ है पर ऑक्साइड, आपका बेरियम पर ऑक्साइड, ये आपका क्या है पर ऑक्साइड है। आप खाली बेरियम ऑक्साइड अगर बनाएंगे तो BaO बनाएंगे ना, लेकिन ये क्या है आपका पर ऑक्साइड है। तो पर ऑक्साइड को भी ध्यान के चलिएगा, पर ऑक्साइड में भी आपको जब भी आप लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आप -2 लगाएंगे। अब है आपके पास कुछ और चीज़ आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल है आपके सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, सब ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। इनका थोड़ा सा कंपाउंड में फ़र्क होता है, इनकी चीज़ें फ़र्क रहती हैं और इनको आपको थोड़ा अलग देना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया परऑक्साइड के बारे में, आपने ऑक्साइड है खाली -2 चलेगा, परऑक्साइड है -2 चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ और भी नाम आ रहे हैं हमारे पास, सुपर ऑक्साइड्स एंड वी आर ऑल्सो हैविंग द सब ऑक्साइड्स, ठीक है। वी आर ऑल्सो गेटिंग दीज 2 डिफरेंट, दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस। और इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो अटैच्ड होता है टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। आपने यहाँ क्या करा, किसी मेटल के साथ ऑक्साइड बना दिया, मेटल के साथ परऑक्साइड कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं कि ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है, जैसे कि OF2, ठीक है। तो क्या होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O2F2, ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ इस कंडीशन पे अगर आप देखेंगे इसकी +2 है, और यहाँ पे क्या है आपका +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई सीधी बात है। अब आप कहोगे भाई ऑक्सीजन को तो हम -2 लेके चल रहे हैं हर जगह, चाहे परऑक्साइड चला रहे हो चाहे कुछ भी चला रहे हो, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस है, क्यों, क्योंकि ये जो दूसरा एटम है दिस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा ना, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसीलिए इसकी वैल्यू, और ये तो आप खुद भी जज कर सकते हो ना, यहाँ से कोई इशू तो है नहीं। तो दिस वे आपको पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही वैल्यू 2 जो है ऑक्सीजन की, इसीलिए तो +2 आया है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की देखो 2 आ रही है, F की भी इधर बैलेंसिंग करेगी, लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन इससे लेस हो जा रहा है, इसीलिए इसको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। सो देर आर मैनी थिंग्स विच यू हैव टू एनालाइज, लेट्स फोकस सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। Now there is one point, algebraic sum of oxidation numbers of all atoms in a neutral molecule is 0. Now what does it means? Suppose for example अगर आपको कोई भी molecule दिया जाए, जैसे for example मैंने आपको water दिया, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं जो इसका, जैसा मैथ्स में करते थे ना, कोई भी लिखते थे यहाँ पे
कोई भी आप इक्वेशंस लिख रहे हैं तो उसको इक्वल टू ज़ीरो कर लेते थे। हमने केमिस्ट्री में भी देखा है, जब हम मॉलिकुलर वेट्स या मॉलिकुलर मास निकालते थे, एक हम लोग है ना हमेशा वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर लिखते थे। अब यहाँ पे थोड़ा मैथ्स से रिलेट करके चलो, कि जैसे कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो यहाँ ज़ीरो लगा देते हैं। तो ये कंडीशन है, आपको थोड़ा ध्यान दे के चलना है कि अब ये कैसे होगा। जैसे आपको ये है, ये आपको हमने वाटर मॉलिक्यूल एक एग्जांपल दिया है, तो इसका जो टोटल अप होगा वो ज़ीरो अप होगा, ज़ीरो रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर्स किस किस के क्या हैं। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H over here is what, +1। देख के आ रहे हैं अभी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2। सो व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू सम अप दीज वैल्यूज़, ठीक है। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, ठीक है, क्या होगा, इक्वल लगा लेना, मेरी पेज छोटा है। सो इट इज़ व्हाट, +1। हाउ मैनी एटम्स आर देयर, 2, यहाँ -2। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो अगर आप इसको देखोगे तो इक्वल टू ये क्या आ जा रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो सम अप इसका आपका 0 आ जा रहा है। तो देयर आर मैनी थिंग्स विच यू विल कम अक्रॉस। वी हैव अदर एग्जांपल्स आल्सो। सपोज वी टुक सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपने सिंपल इज़ दैट, इनका सब अब तो आपको पता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H क्या है आपका, और सल्फ़र क्या है आपका, है ना, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है। और ऑक्सीजन का क्या सीन आपका बैठ रहा है। तो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड। लेट्स फोकस ऑन इट। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H अगर हम देखते हैं तो +1 है, सल्फ़र की हमारी +6 है, और ऑक्सीजन हमारा -2 है ना। तो ये लिख लीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपको सम ऑफ ऑल द दीज थिंग्स यू हैव टू ऐड ऑन। तो यहाँ पे आपने देखा द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका +1 है, इंटू 2 टाइम्स रहेगा, प्लस सल्फ़र इज़ +6 प्लस -2 into how many times, 4, 2 + 6, 4 2 = 8। तो ये सम अप होके कितना आ जा रहा है, इसका 0 आ जा रहा है, ठीक है। अब इसमें ये हम बात में देखें, एक्चुअली क्या होता है ना, एग्रीगेट पे ये सब हम मैथ्स में पढ़े हुए हैं कि ये 0 आ जाता था ऐड अप होके। तो उसी चीज़ को देख रहे हैं हम कि ये 0 वाकई इक्वल 0 हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब वैल्यूज़ अपनी कैलकुलेट करेंगे तब हमें एक आइडिया। वी विल स्टार्ट विद द कैलकुलेशन, हाउ विल कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। सपोज द टीचर गिव्स यू लाइक दिस सम एग्जाम्पल, सो शी विल डेफिनेटली अंडरलाइन सर्टन एलिमेंट्स, कुछ भी कर सकती है, मैंने सल्फर करा रखा है, तो शी कैन डू एनी अदर थिंग ऑल्सो। सो यू शुड रिमेंबर this is the unknown value to you. You have to put X over here. So it is your choice whether you write down कि let the oxidation number of each sulfur atom in this particular ion, because an ion -2 is be there, it's X. So what you can do that you can simply, you have stated this is X, now you have assumed it as X, now you just put it the values, this is X, and how many atoms are there, 2 atoms are there, so plus it on, and you know that oxygen is there. Yeah, so you have to check it out कि whether it is in peroxide or it is coming in what they, or it is the superoxide, that is the other part. So there over here oxygen is -2, so -2 you put it over here. How many atoms are there, 3. Now again I am telling you it is your choice. अगर आप 3 को पहले लिखना चाहे ऐसे यहाँ लिखना चाहे, no issues, पर यहाँ पे ही वैसे ही लिखिएगा. So over here you are putting the oxidation number, over here you are putting the number of atoms, and it is having a charge over here. So that is how much, -2. So you put -2 over here. Now you can multiply just like maths, 2x plus, and this is -6, this is -2. So again 2x minus 6, it's -2. So 2x you put it here, so it is +6 and -2. So 2x it is +4, because 6 is more, no, this much you know it. So x is equals to 4 divided by, put it, now please remember that when you are calculating it, put the sign also. If you are writing 2 and you are writing all the steps, then 2 you will get 0 over here. So over here the oxidation number of sulfur is how much, it is +2 in this particular ion. So oxidation number of sulfur in S2O3 -2 is
plus 2. If you again, I am telling you, if you write down simply 2, I know 2 is a positive value, but over here in oxidation number of the oxidation states is very important that you have to put the sign also, whether it's positive or negative. That's very much important for you all. Now let's focus some other examples also. This was the case of the ions. Now we can have an point of certain other example also. Just suppose karo I put it ClO minus. Okay, so in this case I am asking you to, this is the example, I am asking you to calculate the oxidation number of Cl. so this will be the x case. so x है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन है, -2 है, अब इसमें चार्ज अगेन लगा हुआ है -1. so x, you put it here, it is +2 now, -1 over here. so x will be how much, it is 2 is more ना, तो +1. तो Cl की जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ कितना आ गया, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन ClO minus ion is +1. so this much you have to write down. so this was the second example. We can take some other examples also. Now children, there are certain more examples which you have to keep in mind when water का case आ जाए, या if you are getting this thing अमोनिया का केस आ जाए, जो बेसिकली आप आगे पढ़ोगे. चलिए इन क्लास 10th इन 12th वी आर हैविंग द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्टन कॉम्प्लेक्सेस जो कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उनके केस में हम लेते हैं. तो वजह से कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है, वाटर है, अमोनिया है, जो बेसिकली इसको हम एक्वा बोलते हैं और इसे हम अमीन बोलते हैं. ठीक है, तो दीज थिंग्स आर देयर, दीज आर द न्यूट्रल वैल्यूज़ होती हैं इनकी, और इनको ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली. ठीक है ना, तो दीज आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड वी ऑलवेज पुट, जैसे अगर आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर देख के चलेंगे तो वी पुट 0 है. ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स विच यू हैव टू रिमेंबर. सो ये नहीं कि आपके पास दिया रखा है तो आप वाटर को खोल के लिख देंगे. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम राइटिंग दिस थिंग, ये कॉम्प्लेक्स है, जो तुमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, उसको रिलेट करके करते हैं. तो ये न्यूट्रल, इसमें वाटर मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल वैल्यू है. तो आपको सपोज करो टीचर 100% कोई मेटल का ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को बोलेगा, तो यू पुट इट एक्स ओवर या प्लस दिस वैल्यू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 0. so you put it 0 over here, how many times it is there, how many molecules are there, 6 plus now Cl is been there, you know -1 value is been given to you, this is how much 3. ठीक है, इसको ब्रैकेट्स में लिख देना. अब ये एक न्यूट्रल वैल्यू है, ऊपर कुछ चार्ज पावर कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इट विल बी 0, यू विल पुट 0 ओवर हियर. नाउ यू कैन हैव अ लुक ऑफ इट, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करो, ये 0, दिस इज़ -3, इट इज़ 0. सो x इज इक्वल्स टू दिस वे यू कैन राइट ऑन +3. तो Fe की जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है दैट विल बी +3. आई एम राइटिंग मोर एग्जाम्पल्स ना फॉर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. हमने यही 2 बुक्स में दिए रखे, फॉस्फीन नहीं दिया रखा है, और CO भी होता है आपका, जो इसकी भी न्यूट्रल वैल्यूज़ होती हैं आपकी. ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है. देखो ये तभी एप्लीकेबल है जब आपको किसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में दिया रखा हो. अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में नहीं है तो फिर आप तो इंडिविजुअली इनको निकालेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू फोकस, जैसे हमने अभी यही देखा है अभी वाटर के केस में, हम एक अमीन के केस में भी देख लेते हैं. अमोनिया मत भूलना है, दिस इज़ कमिंग अगेन, आई एम टेलिंग यू, ये क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी आ सकता है, तो यू शुड रिमेंबर इट, क्योंकि ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे. स्पेशल केसेस होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के, तो कोबाल्ट की ही हमेशा निकालने को इसमें दिया जाएगा, क्योंकि ये मेटल है आपका. तो आपको सिंपल मालूम है, यू पुट इट एक्स ओवर या प्लस दिस वैल्यू इज़ 0, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने ये ब्रैकेट्स में पेरेंथेसिस में लिख दिया, तो 6 इज इक्वल्स टू +3. सो x, ये तो +0 इज इक्वल्स टू +3, सो x इज इक्वल्स टू +3. So this way you can easily calculate. I think the easiest ways to you can understand, but these are the cases. Certain molecules you can take जहाँ पे there is no you can say ना, no charge, negative or positive charge is written over here. That part also you can take. Suppose करो I am taking K4 FeCN6. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में, अगेन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वन. कॉम्प्लेक्स वाले ही हम टच कर रहे हैं ताकि हमें समझने आए. सो लेट्स फोकस ऑन इट. सो दिस इज़ हाउ मच 4 atoms of this thing, and you know the oxidation number of potassium. I have already discussed with you, this is alkali metal, so ये +1 होगा into 4 times, 4 atoms हैं, प्लस ये x रखिए,
प्लस Cn-1 है। देखो ज़्यादातर जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, जो इनकी वैलेंसी या फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट होता है, वही इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है मैक्सिमम केसेस। कुछ ही स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे ये फ़र्क हो जाता है। तो Cn में -1 होता है, नहीं हो तो क्लास 9 की लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें सबकी वैलेंसी दी रखी है, भूल गए हो तो वहाँ से याद कर लेना। तो -1 है इंटू 6। अब इट इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना पूरा ओवरऑल, इसमें कोई चार्ज नहीं है ना, तो यू पुट इट 0 over here. सो +4, देखो अगेन आई एम टेलिंग यू पुट द चार्ज ऑल्सो, विदाउट इट इट इज़ यूजलेस। सो x इज़ -2, 0, x इज़ ओवर here +2। तो यहाँ Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2। नाउ मैक्सिमम थिंग वी हैव कवर हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर और द ऑक्सीडेशन स्टेट टू प्रैक्टिस मोर। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल अंडरस्टैंड, देन वी विल फोकस ऑन द डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस मेथड्स और बैलेंसिंग द इक्वेशंस। अभी तक आपने जो बच्चों वाली इक्वेशन बैलेंसिंग करी थी, अब हम लोग एक डिफरेंट वेज हैं हमारे पास रिएक्शंस को बैलेंस करने का। आई विल शेयर इट इन द नेक्स्ट वीडियो।